Today we are going to discuss the Schrodinger's wave equation in quantum mechanics. Schrodinger's wave equation in quantum mechanics. And unfortunately, in our syllabus we have to study the equation which was derived and built by Schrodinger directly. He has developed two kinds of equation. One is Schrodinger's time independent wave equation, and second is Schrodinger's time dependent wave equation. I will explain you. I will consider directly the time independent equation, and from that how we are going to make time dependent equation, that I will explain. तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लर्न करना है कि Schrodinger's time independent wave equation in 3 dimension is expressed as, I am writing here, in 3 dimension. It is expressed as del square psi plus twice m upon h cross square into bracket e minus v of psi equal to 0. This is Schrodinger's wave equation in 3 dimension, where the important I am trying to explain, where del square represent partial derivative for 3 partial derivative along x y z axis of the wave function psi, which represents the wavelength natural particle. Therefore, del square is an operator. It is del 2 over del x square plus del 2 over del y square plus del 2 over del z square. It is second order partial derivative operating on psi. Right? Second thing यहाँ पे जो है वो है E. It is total energy. ये आपको मेंशन करना है अच्छे से. E is total energy. V is potential energy of the particle. V जो है वो potential energy है particle की. उसके बाद में psi, as you know, it is equals to psi 0 e to the power minus I omega t. It is nothing but it is called as wave function. Then h cross is equals to h upon 2 pi. Here h is Planck's constant. h जो यहाँ पर है वो है Planck's का constant है, और h is g, and is mass of the particle. Mass of the particle, जो भी आपका particle है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, जो भी particle है, उसका mass है m. So this equation del 2 psi or del square psi plus twice m upon h cross square e minus v of psi equal to 0 is called as Schrodinger's time independent equation. Why it is called as time independent equation? Because only space or position derivative of the wave function is considered. The variation with respect to time in wave function is not included in this particular equation. तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डायरेक्टली 2 मार्क के लिए कि state and explain Schrodinger's time independent equation. You have to write the equation and explain the different parameters. Now we are going to find time dependent equation using this. तो ये first equation थी. Second equation में यहाँ पे भी एक शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कैसे इसको फाइंड करते हैं. Number 2, time dependent equation. This is time dependent equation. टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? Schrodinger's wave equation है. पहले आपने स्टडी किया टाइम इंडिपेंडेंट, सेकंड इज टाइम डिपेंडेंट wave equation और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दोनों है. नाउ इन दिस इक्वेशन अब आप यहां पर हमको इंक्लूड करना है वेरिएशन इन psi विद रिस्पेक्ट टू t. तो हम कहां से इंक्लूड करेंगे आप देखिए. नाउ वी हैव psi इक्वल टू psi 0 to the power minus I omega t. Differentiating this with respect to t, I will write d psi by dt is equals to minus I omega, ठीक है, minus I omega psi 0 into the power minus I omega t. This psi 0 to the power omega t is psi. Therefore, it will be equal to minus I omega into psi. This is क्या मिला मुझे? d psi by dt. This is minus I omega into psi. Equation number 1. Now I know that omega is equals to 2 pi nu, and also I know that E is equals to h nu. Therefore मुझे क्या मिलेगा? Omega is equals to 2 pi as it is, nu is equals to E divided by h. अगर 2 pi के नीचे लेके चला गया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या मिलने वाला है? E divided by h cross. Equation number 2. इक्वेशन
तो 2 से ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ डालेंगे, आपको मिलेगा d psi by dt is equal to minus I as it is. ओमेगा की वैल्यू क्या है? E divided by h cos square into psi. इस इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस I इंटू I स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू 1 दैट इज प्लस, ये मिलेगा आपको E psi डिवाइडेड बाय I h cos square, सॉरी नॉट h cos square, it will be simply I h cos. तो आपको मिला del psi by del t, d psi by dt is equals to E psi divided by h cos. What did we get? d psi by dt equal to, this is dt, E psi upon h cos, cos multiply करेंगे आपको मिलेगा E of psi is equals to I h cos d psi by dt, right? Now you can see this equation number A. First equation was A, this equation was B. Now substituting the value of E of psi in equation number A, we get from A and B. By equation A, I am getting here. By equation A, I get the three-dimensional Schrodinger time dependent equation now. Del 2 psi plus twice upon h plus square into bracket E of psi. E psi का वैल्यू कितना? I h cross del psi by del t. It is I h cross del psi, I h cross del psi और d psi by dt आप बैठेंगे d psi by dt, ये लिख दिया मैंने, प्लस v of psi, सॉरी माइनस v of psi ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c. दिस वे, इसको और हम एक स्टेप लिखेंगे. ये भी हो गया कि आप इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि दिस इज Schrodinger's टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. यू कैन कॉल इट एज Schrodinger टाइम डिपेंडेंट. अदरवाइज एक और तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं. हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए. ये पूरी टर्म को हम राइट साइड पे लेके चले जाएंगे. ये जो h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करें h स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस m, इट इज del स्क्वायर psi हो गया, will be equal to minus I h cross del psi by del t plus v of psi. So this equation is called as Schrodinger's time dependent equation. Why? Because in this equation we have considered the differentiation of psi with respect to time. It is d psi by dt. Okay? So variation in psi with respect to t is linked with variations in space coordinates of psi. So this equation is called as Schrodinger's time dependent equation. So you just go through it. It is simply mathematical things. एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं. Okay. So this is Schrodinger's wave equation, time independent and time dependent. Now in our syllabus we have to study the application of Schrodinger's time independent equation for a particle in one-dimensional potential well or particle in one-dimensional potential box. तो एक केस स्टडी है, थोड़ा सा डिटेल में इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. एग्जाम्स में अगर सर आपके एग्जाम होते जो कि 71 का पेपर होगा 3 आवर्स का, तो आपको डेफिनेटली ये 2-3 मार्क के लिए पूछा जाता है. और अब जो हम डेरिवेशन करने वाले वन डायमेंशनल वेल या पार्टिकुलर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, उस पे डेफिनेटली मिनिमम 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है. तो लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ Schrodinger's wave equation to a particle in one dimensional potential well. We are going to study one dimensional potential well. इसका दूसरा नाम ये और है पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बॉक्स. पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बॉक्स, इसके अंदर एक पार्टिकल को हम डालेंगे और देखेंगे उसकी स्टेटस कैसी होती है. तो सबसे पहले वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का मीनिंग क्या रहता है? वी हैव कंसीडर्ड एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन. वी कंसीडर वी हैव टेकन ओरिजिन दैट इज 0 और यहां से एक लाइन ले ली L. इन दो पॉइंट्स के ऊपर में एक बाउंड्रीज हमने बनाई, दो बाउंड्रीज हमने यहाँ पे बनाई सच दैट कि इन बाउंड्रीज के ऊपर में जो भी पार्टिकल जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जाएगा उसका इनफाइनाइट. हो गया पोटेंशियल इनफाइनाइट. और 0 से कहीं तक इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर में
जो भी पार्टिकल रहेगा वो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा। If a particle is trapped between two infinite potential boundaries, तो इन बाउंड्रीज से बाहर तो आ सकता नहीं। जब वो इन बाउंड्रीज के ऊपर पार्टिकल रहेगा तो उसका स्टेटस क्या रहेगा आपको पता नहीं है, लेकिन जब वो इन दो बाउंड्रीज के बीच में रहेगा पार्टिकल, तो विद इन द बाउंड्रीज द पार्टिकल विल बी फ्री, नो फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। नाउ विद इन दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पार्टिकल फ्री है, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जीरो। टोटल एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसा रहेगा उसका? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड पार्टिकल इज फ्री। पार्टिकल कैसा है? दो बाउंड्रीज के बीच में फ्री है, तभी आप बोलेंगे वो पोटेंशियल वेल के अंदर में या पोटेंशियल बॉक्स के अंदर में, उसके अंदर ही रह सकता, बाहर नहीं आ सकता। जब भी उन दोनों पोटेंशियल लिमिट पे जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट रहेगा, कोई पता नहीं कर सकता कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इसलिए जब पार्टिकल यहां पर है दोनों लिमिट के बीच में, तो उसकी वैल्यू साई इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। यहाँ पे उसका नॉन जीरो वैल्यू रहेगा, साई ऑफ एक्स जब कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितनी है। लेकिन जब वो पार्टिकल ये जो आपकी बाउंड्री नंबर 1 आई, ये बाउंड्री नंबर 2 आई, अराउंड एक्स डायरेक्शन आप ले रहे हैं, ये पहली बाउंड्री है जहां पे आपने लिखा x इज इक्वल टू 0। यहां पर पार्टिकल जब जाएगा तो कैसा रहेगा? तो आप लिखेंगे साई ऑफ 0 इक्वल टू 0 फॉर दिस बाउंड्री। फॉर सेकंड बाउंड्री यहां पे x इज इक्वल टू 12 और इसके ऊपर भी साई ऑफ l, इसकी वैल्यू रहेगी 0। If a particle is trapped into infinite potential limits such that within the limit the particle is free, it can be not acted by any forces, then we say particle is trapped in one dimensional potential well or potential box. Within the well, total energy of the particle is kinetic, ये freely घूमेगा वहाँ पे, its potential energy equal to 0 at the two boundaries x is equal to 0, psi of x आप उसका वेव फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते बिल्कुल 0। सिमिलरली x is equal to 12 के लिए psi of l is 0, लेकिन यहाँ पर x के नॉन जीरो वैल्यू के लिए psi of x की एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, psi कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिखा psi कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट हैज सर्टेन नॉन जीरो वैल्यू। हम पर सर्च करेंगे तो इसके ऊपर में, इस केस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि किसी भी समय पर आप उसको जाकर देखेंगे टाइम का कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल आपका रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तो हम यहाँ पर हमको पता है कि 3 डायमेंशनल केस में, इन 3 डायमेंशन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इज रिटन एज यू नो del 2 psi plus twice m upon h cos square e minus v of psi equal to 0, where m is what? Mass, h is Planck's constant, E is kinetic total energy and v is potential energy. Now for one dimension and within the well, वेल के अंदर में क्या होगा? v इक्वल टू 0। वन डायमेंशन के लिए हम लिखेंगे d2 psi डिवाइड बाय ओनली x डायरेक्शन, dh स्क्वायर प्लस ट्वाइस m अपॉन h cos स्क्वायर। v की वैल्यू 0 हो गए तो आप लिखेंगे e of psi इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ लिखने वाले हैं ट्वाइस अपॉन h स्क्वायर e इक्वल टू k स्क्वायर, टू राइट इफ we write here twice m upon h square e equal to k square, so this is my equation number 1, then equation 1 becomes d2 or d2 psi divided by dx square plus क्या मिलेगा आपको k square psi equal to 0, equation number 3। It is a second order differential equation जिसका solution रहेगा, the solution of second order differential equation वहाँ पे psi का मतलब selective रहेंगे। The solution of equation A, the solution of A will be of the type psi equal to psi 0 a to the power I kx, तो यहाँ पर हम लेंगे psi equal to a to the power I kx plus b e to the power minus I kx, ये इसके आपको याद है। सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा रहता है? उसके दो कांस्टेंट रहते हैं, a and b are नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज, सो दिस इज माय psi of x is equals to a to the power I kx plus b to the power minus I kx की हमने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस किया k स्क्वायर से, where k is this much, whatever। So this is my equation number, I am writing this equation is my equation number 2। Now applying boundary condition, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हम ए और बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके हम करेंगे अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। हमारे पास में बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी है? एक और एक दो। तो पहले अप्लाई कर रहे हैं हम फॉर x is equals to 0
साई ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगी आपको, साई इक्वल टू 0 a प्लस यहाँ पे a e टू द पावर 0 is equals to 1 plus b e to the power 0 equal to 1, therefore you will get b equal to minus a, इक्वेशन नंबर लेट मी राइट स्मॉल। अब हम यूज करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, फॉर x इज इक्वल टू l, मुझे क्या मिल रहा है, साई ऑफ l इक्वल टू 0, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना था, फॉर x इज इक्वल टू l, साई इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू a e टू द पावर i k l, x i l लिखेंगे, प्लस b e टू द पावर माइनस i k, ये l आपका आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन से माइनस है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, आई एम राइटिंग हियर a e टू द पावर i k l माइनस a e टू द पावर माइनस i k l इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन क्या निकालेंगे, a कॉमन निकला, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, e टू द पावर i k l माइनस e टू द पावर माइनस i k l इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Now, in complex number, according to Euler's rule or according to Euler's theorem, साइंटिस्ट का complex number के अंदर में Euler's theorem क्या है उसके पास में, twice ai e to the power I theta minus e to the power minus I theta divided by twice ai equal to sin theta, ये है Euler's equation, राइट। तो हम यहाँ पे e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, वो ट्वाइस ai sin थीटा, वेयर a इज अ कांस्टेंट, Euler's इक्वेशन, यू गेट इट, दिस इज Euler's इक्वेशन, इट इज एक्चुअली ट्वाइस ia, इट इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस i, इट इज नॉट ए, इट इज ट्वाइस i। तब आप इस इक्वेशन को देखेंगे, e टू द पावर i केल, थीटा की प्लस में लिखा हुआ केल, e टू द पावर माइनस i केल, थीटा की प्लस में लिखा हुआ केल डिवाइडेड बाय ट्वाइस i है, तो e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा इक्वल टू ट्वाइस i इनटू sin थीटा। तो इस ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर b, यहां बहुत ध्यान देना है आपको, बाय इक्वेशन b आई एम राइटिंग, बाय इक्वेशन नंबर b, ये b इक्वेशन है, a एज इट इज, ये ट्वाइस x मल्टीप्लाई होगा, तो आप मुझे यहाँ मिलेगा a into twice I into sin theta will be equal to, what did I get, will be equal to, यहाँ पे क्या मिला, ये हमने e to the power I k l minus e to the power I k l, इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, twice I sin k l, तो थीटा की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे, it is k l equal to 0, ये क्वेश्चन आ गई, a आ गया, ये ब्रैकेट की जगह क्या लिखा आपने, twice I sin k l, okay, therefore I get twice ai sin kl equal to 0, it is very important equations to याद रखना। कंडीशन क्या थी इसके लिए, हमने इसके लिए स्टार्ट किया था कहां से, फॉर x is equals to 0 psi of l is equals to 0, वहां से सॉल्व करके हम इस इक्वेशन के ऊपर में आते हैं। जब इसके ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे ये कैसे है, twice a into sin kl, this मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू 0, इट मींस दैट यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो twice a 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, और sin k l इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ट्वाइस a 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये a जो है ये कांस्टेंट है, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, sin k l इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे सिंस ट्वाइस ai कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज a इज कांस्टेंट, ये कैसा था आपका, कांस्टेंट था, देयरफॉर यू विल राइट sin k इक्वल टू 0। जब sin k इक्वल टू 0 होगा, हमें पता है sin थीटा इक्वल टू 0 कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू कैसे लेना चाहिए, n पाई, जब थीटा की वैल्यू कैसे लेना चाहिए, n पाई, देयरफॉर k इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाय l, और यू राइट k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर, दिस इज माय इक्वेशन नंबर, आई एम राइटिंग हियर कैपिटल B, दिस इज माय इक्वेशन नंबर कैपिटल B, दैट नाउ कैपिटल A आप देखो, उसके बाद में इक्वेशन लिख ली कैपिटल A के ऊपर आप देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस n अपॉन स्क्वायर स्क्वायर, तो k स्क्वायर के बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन को, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्वाइस n अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस m e डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। नाउ दिस इज h अपॉन 2 पाई, उसका स्क्वायर करके आपको क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर करके आपको क्या मिलेगा यहाँ पर c, और आई एम राइटिंग हियर ट्वाइस m e
डिवाइड बाय h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मिलेगा आपको, ये विल बी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ml स्क्वायर। आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम ई मिला आपको, डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको एच स्क्वायर, यहाँ से मिला विल बी इक्वल टू, अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ से एम स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय एम एल स्क्वायर, ये h है, ये n है, ध्यान रखना। सो दिस पाई स्क्वायर कैंसल, राइट, इसको आप लिखेंगे देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, इसको नीचे लेके जाएंगे ऊपर जाएगा m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ से एल स्क्वायर रहेगा, इट विल बी 8 ml स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी। नाउ कैन सी व्हाट इज n, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है, हियर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 हो सकता है, इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो। नाउ फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट इफ यू पुट n is equals to 1, then I will get first energy. Therefore, I am writing here for n is equals to 1, मुझे मिलेगा पहला allowed energy E1 is equals to interval 1, it is h square divided by 8 ml square. Now for ये पहली केस हो गई मेरी, सेकंड केस है for n is equals to 2, I will get E2 is equals to 2 square रहेगा पे, है ना, n square, it will be 2 square, that is 4 h square divided by 8 ml square। अब उसको कंपेयर करेंगे, ये कितना हो गया, E1 था, this is 4 times, you will get this is 4 times E1, then again for n is equals to 3, what did we get, E3 is equals to 9 h square divided by 8 ml square, that will be equal to 9 times E1 and so on, you will get। तो at the end in this method में आप लिख सकते हैं En is equals to n square h square divided by 8 ml square। This interpretation suggests that energy of the particle, though it is free in one-dimensional potential well, it cannot have any value. It will take either value E equal to h square upon 8 ml square, or E2 equal to 4 times E1, or E3 equal to 9 times E1, or E4 is equal to 16 times E1, और बाद में E1 और E2 के बीच में जो एनर्जी की वैल्यूज रहेगी, वो वैल्यूज पार्टिकल जो है वो ऑक्युपाई नहीं कर सकता। दिस इज द सिमिलर केस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, जैसे मॉलिक्यूल बनना वहां पे तो दूसरा न्यूक्लियस आ गया, दोनों पॉजिटिव चार्जेस आ गए, दोनों पे इलेक्ट्रॉन से जाके टच हो जाएगा, तो दो बाउंड्रीज बन जाएंगी पोटेंशियल वैल्यू की, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सिर्फ अलाउड एनर्जी पे रहेगा, या E1 पे रहेगा, या E2 पे रहेगा, E3 पे रहेगा, E4 पे रहेगा। E1, E2, E3, E4 इनके बीच में जो रेंज ऑफ एनर्जी है, दोज आर फॉर्बिडन एनर्जी रेंजेस, वो एनर्जी के वैल्यू को इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी पार्टिकल इस तरीके के वन डायमेंशनल पोटेंशियल में रहेगा, इट विल टेक discrete or quantized or allowed energy values. These discrete, quantized or allowed energy values are called as eigenenergy values. मैं यहाँ पे छोटे से टेबुलर के फॉर्म में इसको यहाँ पे लोकेट करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ। आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो उसको पॉज करके देख लेना, यू विल गेट इट। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द सेम पोटेंशियल वेल, दिस इज माय सेम पोटेंशियल वेल, दिस इज हियर इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी 0, दिस इज if I write this is n1, दूसरा क्या है 4 टाइम्स, तो आपको 4 टाइम्स लिखना चाहिए, तीसरा का 9 टाइम्स तो लिखना चाहिए, दिस इज n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, this energy is E1, this E2 is equals to 4 times E1, you write E3 equal to 9 times E1. These are the allowed energy values। इन्हीं वैल्यूज के ऊपर में आपका इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल रह सकता है। इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी की वैल्यू है वहां पर पार्टिकल नहीं रहेगा, या तो यहाँ रहेगा फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, या तो यहाँ रहेगा सेकंड एनर्जी स्टेट में, या तो यहाँ रहेगा थर्ड एनर्जी स्टेट में। इस इक्वेशन के अंदर में अगर से आप n is equals to 0 पुट करेंगे,
इस इक्वेशन में अगर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पार्टिकल की एनर्जी 0 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर में पार्टिकल का टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती, पार्टिकल कभी भी रेस्ट पर नहीं हो सकता, या तो इस लेवल पर रहेगा या इस लेवल पर रहेगा, इस लेवल पर रहेगा, इसलिए पार्टिकल की एनर्जी कैन नेवर बी इक्वल टू 0, हेंस E1, which is equals to h square divided by 8 ml square, is called as its least energy level, or it is called as ground energy level. इसको आप क्या बोलते हैं? ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी स्टेट आप इसको बोलते हैं, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं रहेगी बल्कि मिनिमम रहेगी, E1 is equals to h square divided by 8 ml square. These allowed energy values are called as Eigen energy values. आप इनको क्या बोलते हैं? Eigen values. ये आपको याद रखना। This is a particular mathematical representation of application, how we can apply Schrodinger's time independent wave equation to a case where a particle is trapped in one dimensional potential well, or between the two infinite potential limits such that the particle is free between those two limits. तो यहाँ पे result मिला, the particle cannot have any continuous energy, but it has to take either first energy or second energy or third energy. Energy of the particle is quantized and it can take only allowed energy values, and those values are E1 into E3 in terms of the vacuum equations. You can write 8 ml 8 divided square n square divided by 8 square. By putting the different value of n, you can write E1 into E3 E4 and so on. There are so many types of numericals are asked on this particular picture. The point. So this is for you. Try to find. Now one more thing, try to find कि इस वेल के अंदर में जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसा रहेगा। तो वेव फंक्शन को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से ध्यान देंगे, सारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे कि विद इन दिस पोटेंशियल वेल अब क्या था हमने निकाल रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं टू फाइंड फॉर, क्या फाइंड करेंगे हम, साई ऑफ एक्स, ये हमको फाइंड करना है। तो विद इन द पोटेंशियल वेल क्या था, विद इन द वेल जो पोटेंशियल का कुआं था, जो वेल था उसमें क्या था, साई ऑफ एक्स था। जब हम साई ऑफ एक्स लेते हैं, साई ऑफ एक्स हम लेते हैं जो नॉन जीरो रहेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब ये वाली इक्वेशन हम जाएंगे, ये इक्वेशन वहां कैसे इंप्लीमेंट होगी, वो होगी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए आई साइन के एक्स। दिस इज आगे समझ में हमने बाउंड्री कंडीशन क्या लगाई थी, x is equals to 12, therefore psi of x is equals to 0, तब हम क्या ले रहे हैं, साइन की वैल्यू x है, हमने लिया तो psi of x कैसा मिला हमको, ट्वाइस आई साइन के x मिल गया आपको। हमें पता है पार्टिकल 0 से लेके l तक कहीं ना कहीं है, psi कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेल प्योर फंक्शन, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जो कि लास्ट में बताया आपको, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कैसे रहेगी, ये इंटीग्रल ओवरऑल एक्स डायरेक्शन ही है, 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, आपका 0 से लेकर l तक जा रहा, क्या है आपका वैल्यू साई ऑफ x इट्स स्क्वायर, एक ही डायरेक्शन है dx विल बी इक्वल टू 1, है ना। साई को साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू मिलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड, वो क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, और रियल नंबर कैसा होना चाहिए, उसका सबका इंटीग्रल करेंगे तो इट विल बी 1। देयरफॉर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई ऑफ x इन दिस इक्वेशन between 0 to l, we will try to find what is x. Therefore substitute this value here, हमको मिलेगा 0 to l, साई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ट्वाइस ai, इसका स्क्वायर लिया और यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर kx dx is equals to 1। अब जब मैं इस इंटीग्रल को अलोंग साइड इसको अलग से जब सॉल्व करूंगा ये इंटीग्रल को, यहाँ से कैसे इसके पावर लिख रहा हूं, ट्वाइस ai x स्क्वायर बाहर निकाला 0 to l sin स्क्वायर kx dx will be equal to 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से, इसको आप सॉल्व करके देखना, तो जो वैल्यू मिलेगी मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ट्वाइस ai स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ai, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी l/2, वैल्यू जो मिलेगी मुझे l/2 will be equal to 1। मुझे क्या मिला, ट्वाइस ai into l/2 equal to मुझे तो 1 मिल गया। Therefore from that I can write what will I write, what can I write, therefore इसका स्क्वायर रूट लूंगा मैं, तो ट्वाइस ai will be equal to root 2/l। चलिए यहाँ से
मिला। ट्वाइस आई इज इक्वल टू रूट 2 बाय एल, ये जो वैल्यू मेरे पास में आई, इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर में, देयरफॉर मुझे मिलेगा साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस क्या आएगा वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2 बाय एल इंटू साइन ऑफ के एक्स। के का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे मैंने निकाला था n पाई एल, देयरफॉर साइन ऑफ x अलग अलग लेवल पर अलग अलग इसकी वैल्यू होगी, विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन एल, ये अलग हो गया, ये साइन ऑफ साइन के की वैल्यू कितनी है, n पाई बाय एल into x. So this is the required expression for the wave function psi in one dimensional potential wave. Why I have written sin n pi x, because sin n pi x मिलेगा क्योंकि इस इक्वेशन को रूट 2 अपॉन एल अलग हो गया, sin ऑफ n pi x अपॉन एल, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट लेवल पे psi की वैल्यू कितनी रहेगी वो मिल जाएगी, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो सेकंड अलाउड एनर्जी लेवल पे psi की वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर में psi का एनर्जी अलग है, इसलिए उसका एनर्जी अलग है तो psi of x का वैल्यू अलग अलग रहेगा। समझ में आया? तो इन दिस वे वन कैन शो दैट psi of x is equals to root 2 upon n into sin of n pi x divided by, this is the required expression for wave function। 7 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा जितना मैंने इसके अंदर भी आपको करवाया है वन डायमेंशनल पोटेंशियल के अंदर में, ये सारी चीजें आएंगी। 2 से 3 बार इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, डू गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।